Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and this is Layman Psychology. Keep watching, I'll be back. Hey, welcome back people, and I know it's been a long time since I have uploaded a video because I was busy in my admission procedures and counseling related things. But from now onwards, I'll be uploading my all videos on a regular basis, and I'm thinking, or almost I've planned a series which will be specifically based on research methodology. And by this series, you will be able to get the knowledge of all the terms and concepts related to research methodology, which will include reliability, validity, norms, and parametric tests, non-parametric tests, sampling, etc. So this will be our first video, and I've already uploaded two videos titled as why we use the n-1 in denominator while calculating standard deviation, and also I've made one video on hypothesis testing and the significant test, types of tests, etc. So this video I'm gonna tell you about what is reliability, what are its types, and how we can control or increase our reliability, and how we can manage the reliability of tests. Okay, so the first question is, what is reliability? Reliability का मतलब क्या होता है? So in simple terms, reliability is just a measure of consistency of scores which we obtain from any specific test. Okay, let's take an example. मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट लिया है, मैंने उसको एडमिनिस्टर किया एक चाइल्ड पे, और उसका IQ जो निकल के आया टेस्ट के थ्रू वो आया 110, ओके, 110 IQ आया. लेट्स टेक, अगर मैं एक महीने बाद आज से उसी बच्चे पे वापस से टेस्ट करता हूँ, अगर उसका IQ तब भी 110 ही आता है, इट मीन्स कि आवर टेस्ट वाज रिलायबल. क्यों? क्योंकि जो स्कोर हमें पास्ट में मिला था वही स्कोर हमें आगे चल के फ्यूचर में भी मिला है. So this is what reliability is, okay? The consistency of scores over time which you obtain from your test is known as reliability. Basically, we have four types of reliability in our research methodology. The first one is test-retest method. The second one is split half, or you can say the internal consistency method. The third one is inter-rater, or you can say inter-score reliability, and the fourth one is alternative form reliability. Okay, so I'm gonna go through one by one by each method and उसको समझते हैं कैसे कैसे उसके applications होते हैं, कैसे उसको calculate करते हैं. I'm not going to tell you about those complex formulas and all. I'm just telling you the concept and you will be like feeling what reliability is. Okay, so start करते हैं सबसे पहले method से, which is test-retest reliability. ओके, तो टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी में हम एक टेस्ट लेते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं एक चाइल्ड के ऊपर या हमारे जो पार्टिसिपेंट होता है उसके ऊपर हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, एंड एक स्कोर हमें ऑब्टेन होता है. उसके बाद एक टाइम गैप के बाद वी यूज टू एडमिनिस्टर दैट टेस्ट अगेन ऑन द सेम पार्टिसिपेंट और द सेम सैंपल विच वी हैव टेकन ऑन द फर्स्ट ओकेजन, और उसके बाद हम लोग को वहां से एक सेकेंड स्कोर मिलता है. ठीक है, और उसके बाद जब हम उन दोनों स्कोर्स को कोरिलेट कराते हैं, देन वी विल गेट आवर टेस्ट रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट. ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक और व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टाइम गैप बिटवीन दोस टू ओकेजन्स. देखो, ये एज सच कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट द नॉर्म इज वी शुड टेक 1 fortnight which is equals to 2 weeks. सो टेक्निकली हम लोग अगर आज एक टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आज से 2 हफ्ते बाद हमें वही सेम टेस्ट सेम सैंपल पे एडमिनिस्टर करना होता है. उसके बाद हम लोग दोनों टेस्ट को, दोनों स्कोर्स को कोरिलेट कराते हैं. जो भी हमें उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलता है वही हमारा होता है टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी मेथड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड रिलायबिलिटी मेथड which is alternative form reliability method. Okay, so in alternative form reliability we generally used to take two forms which are of same difficulty level. अब same difficulty level से मतलब क्या हो? For example, मुझे एक intelligence test बनाना है, मैंने बना लिया. उसके बाद मुझे उसकी reliability measure करनी है by using the method of alternative form reliability. So मैं ट्राई ये करूंगा कि जो भी मेरे इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चंस हैं उसी की इक्विवेलेंट, उसी की जो एक इक्विवेलेंट पावर का जो टेस्ट होगा या डिफिकल्टी लेवल का जो टेस्ट होगा, मैं एक और तैयार करूंगा विद सम सिमिलर स्टेटमेंट्स, और मैं उन दोनों ही फॉर्म या उन दोनों ही सेट ऑफ फॉर्म्स को दूंगा सैंपल पे एडमिनिस्टर होने के लिए. ओके, सो आई विल बी गेटिंग 2 scores ऑन ईच सेपरेट फॉर्म्स व्हिच विल बी ऑफ सेम इक्वल पावर और डिफिकल्टी.
तो यहाँ पे बस यही बात ध्यान में रखनी होती है कि हमारे जो भी दो फॉर्म्स होते हैं इनकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है उनके क्वेश्चंस में वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद हमें जो भी दो सेट ऑफ स्कोर्स मिलते हैं वी यूज टू कोरिलेट देम एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच वी गेट इज व्हाट अल्टरनेटिव फॉर्म कोएफिशिएंट रिलायबिलिटी इज। ओके, सो यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है। Now we are moving towards our third method of calculating the reliability coefficient of a test, and this is called as split half method or internal consistency method. अब देखो, इंटरनल कंसिस्टेंसी से साफ पता चल रहा है कि हमारा जो टेस्ट होगा उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो आपस में भी कोरिलेट करने चाहिए, उनकी आपस में भी एक होमोजेनिटी होनी चाहिए जिससे हमें हमारा जो टेस्ट की रिलायबिलिटी होगी वो ज्यादा मिलेगी। ओके, अब ये होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस टेस्ट होते क्या है? देखो, सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स में होमोजीनियस टेस्ट इज अ टेस्ट इन विच द प्रॉपर्टीज और द डोमेन्स ऑफ द स्टेटमेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट दैट टेस्ट। ठीक है, और हेटेरोजीनियस में इसी का उल्टा कि जो भी उसकी टेस्ट की प्रॉपर्टीज होंगी, टेस्ट स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या जो भी उनके डोमेन्स होंगे वो इरेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे, वो चेंज होते रहेंगे अपने अपने इंटरवल्स पे। ठीक है, तो ये होता है हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस टेस्ट में डिफरेंस। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगा क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, तो ये साइड रखते हैं। Now the question arises that how we can divide or how we can split this test. Okay, ऐसा नहीं है, आप लोग को कभी भी ये नहीं करना है कि आपने टेस्ट का स्टार्टिंग हाफ ले लिया और लास्ट हाफ ले लिया। The reason behind this is अगर हम एक पावर टेस्ट उठाते हैं जिसमें हमारी कोई चीज, कोई एबिलिटी या कोई एप्टीट्यूड मेजर हो रहा है, तो जनरली उस टेस्ट में होता ये है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग हाफ ले लोगे तो आपकी रिलायबिलिटी उस चीज की अलग आएगी, उस पर ज्यादा रिलायबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी थे और ज्यादा से ज्यादा लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप उसका लोअर हाफ लोगे यानी कि लास्ट हाफ लोगे तो वहां पे उसकी रिलायबिलिटी कम आ जाएंगी, which will in conclusion like disrupt your reliability। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसलिए ये रीजन होता है कि हम लोग क्यों स्टार्टिंग हाफ और लास्ट हाफ नहीं लेते हैं। अब डिवाइड करें कैसे? जस्ट फॉलो द सिंपलेस्ट मेथड बाय जस्ट टेकिंग द ऑड स्टेटमेंट्स एंड इवन स्टेटमेंट्स लाइक 1, 3, 5, 7, 9 आपने स्टेटमेंट्स का उठा के अलग टेस्ट बना दिया, एंड 2, 4, 6, 8 आपने इन स्टेटमेंट्स को उठा के अलग टेस्ट बना लिया, स्प्लिट कर दिया। और अब आप इसको एडजस्ट करते हो सेम सैंपल पे, चाहे आप गैप लेके कर सकते हो या एक साथ लेके कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर मोटिव फॉर द टेस्ट। और इस तरह से आप लोग निकालते हो अपना स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ओके, एंड नाउ द लास्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ योर टेस्ट इज इंटर-रेटर रिलायबिलिटी और स्कोरर रिलायबिलिटी। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल let's take an example of a subjective test. Let's take a TAT. Okay, TAT is a projective test. तो यहाँ पे जितने भी हमें responses मिलेंगे उनमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। ओके, इसीलिए ये टेस्ट डिजाइन किया जाता है कि हमें किसी इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी को मेजर कर सके, उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सके कि हाउ ही थिंक्स और हाउ ही डेवलप्स हिज कॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग रिलायबिलिटी कैसे calculate करें, because the motto of science is to be objective. So what we do in this method is we take 2, 3 or maybe 5, 6 raters which we call them as scorers. फिर कोई statistician हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, we just call them, और उन्हें अपना टेस्ट देते हैं इंडिविजुअली और वो उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं उन पे अपना रिस्पॉन्स देते हैं उन स्टेटमेंट्स पे। And then we draw a conclusion पे true variance, error variance ये सब का भी कॉन्सेप्ट आता है which I will explain in the next video। तो यहाँ पे बस सिंपली आप ये याद रखो, जो समझने वाली चीज है कि इंटर स्कोरर या फिर इंटर रेटर रिलायबिलिटी में हम लोग करते क्या है कि हम अपना टेस्ट किन्हीं 3 या 4 लोगों को देते हैं और वो अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज उस टेस्ट पे देते हैं, देन उसके बेसिस पे हम लोग उस टेस्ट की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। So these were all the 4 types, or we can say the 4 methods of how to calculate reliability। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि हमने कैलकुलेट तो कर दिया, बट अगर हमारी रिलायबिलिटी हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आई, सो व्हाट आर दोस प्रोसीजर्स और व्हाट आर दो टेक्निक्स थ्रू व्हिच वी कैन इंक्रीज आवर रिलायबिलिटी। सो नंबर 1 टेक्निक इज टू इंक्रीज योर n, एंड n स्टैंड्स फॉर योर सैंपल साइज। ठीक है, तो जितना ज्यादा सैंपल साइज रहेगा उतनी ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी आएगी।
And for the ideal conditions mean जो reality में कभी possible ना हो. So for the ideal condition, your maximum coefficient value of your reliability will be 1. Okay? So the maximum value of your reliability coefficient will be 1. और जनरली जो एक अच्छे टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी वैल्यू जो होती है, रेंज होती है उनकी, लाई करती है बिटवीन 0.7 to 0.8, 0.9 भी कुछ टेस्ट की होती है सर. Between 0.6 to 0.9 it is like considered to be a good test, like good reliable test. ठीक है, तो यहाँ पे बात खत्म होती है रिलायबिलिटी की. एक हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, हाउ टू इंक्रीज अवर रिलायबिलिटी, टू जस्ट इंक्रीज अवर सैंपल साइज. द अदर थिंग इज अवर टेस्ट शुड बी होमोजीनियस. मतलब हमारे जो टेस्ट के स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो भी बैकग्राउंड डोमेन होता है वो सिमिलर होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा डोमेन्स में डिफर कर रहे हैं. इंटेलिजेंस का अगर हम लोग कोई एक एस्पेक्ट मेजर कर रहे हैं तो हमारे जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो उसी एस्पेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है, तीसरा यहाँ पे फैक्टर आता है अवर सैंपल शुड बी हेट्रोजीनियस. ठीक है, don't be confused, our test should be homogeneous and our sample should be heterogeneous. Heterogeneous का मतलब होता है कि हमारा सैंपल में वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, वेरिएंस होना चाहिए, वेरिएंस एज सच उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने जितना भी सैंपल लिया उसमें जितने भी पर्सन हैं उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स A to Z सेम हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो जितना ज्यादा आपके सैंपल में हेट्रोजिनिटी होगी और जितना ज्यादा आपका टेस्ट होमोजीनियस होगा उतनी ही ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा आएगी विथ इंक्रीज्ड सैंपल साइज. ओके, so this was all about reliability and my next video will be on validity, its types and like factors which affect validity. So ये series continue रहेगी. So thank you so much for watching this video and I will be continuing this research methodology series for you people because मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं अपने UG सेकेंड ईयर तक. So don't worry, तब तक के लिए stay healthy, stay safe and we'll see you in the next video. Take care. Bye.